Assalamu alaikum everyone. In today's lecture, I will discuss with you chapter first of class 10th mathematics, that is real number. So the heading of the chapter is real number. So before starting this lecture, you should know the following number systems. So the first we will talk about rational number, and हम irrational numbers की बात करेंगे. बट रैशनल नंबर से पहले हम इंटीजर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एंड इंटीजर से पहले हमें होल नंबर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एंड होल नंबर से पहले हमें नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. सो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, यानी कि जहां से काउंटिंग नंबर स्टार्ट होते हैं. एंड अगर हम इरेशनल्स की बात करेंगे, देयर आर मोर टू कैटेगरीज. वहां पे दो सिस्टम्स निकलते हैं. वन इज algebraic numbers, and the second one is transcendental numbers. So these two are higher topics. हमें यहाँ पे क्लास 10th में ये डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. So we will discuss first I will discuss with you what's meant by natural number. Natural number होता क्या है? I think that from class 5 you have heard this term natural numbers. Natural numbers वो numbers होते हैं जो 1 से start होते हैं. So we can write its definition like as the numbers which starts from 1 and then 2 and then 3 and then 4, so on. These numbers are called natural numbers. And second point that you should remember for this number system, that natural numbers are represented, yeah, you can say denoted, represented, or you can say denoted by n. In fact, there must be the differentiate between the capital N and this n. So we write this as a bold N. We write this N as a bold N. And one more thing that you must remember is regarding the natural numbers, that these numbers are also called in numbers ko hum, these numbers are also called counting numbers, counting numbers, or you can say positive integers. Remember. सो बिकॉज काउंटिंग नंबर्स क्यों कहते हैं, कॉमन सेंस भी है. अगर हमें कोई भी चीज काउंट करना होगा, we always start with 1. We cannot start with 0, 1, 2, 3, like if we have to count the number of students in a class. So we always start with 1, then 2, then 3, then 4, then 5. And let's assume that there are 50 students. We're counting from 1 to 50. Similarly, positive integers. There is a huge difference between two terms. One is positive integer and the second one is non-negative integer. I will discuss this term with you later, what is meant by non-negative integer. First, you should know what is meant by positive integer. Positive integer is nothing but it is same as a natural number.
Just like that, if you there is a word positive integer, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब भी होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, देन टू, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव। सो आगे जाके यू विल लर्न अबाउट वी कैन रिप्रेजेंट दिस सेट एज लाइक दिस। ओके, दिस इज, as you know, this is n, that represents the set of natural numbers. We can write down this as in curly brackets like that: 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma so on. So this is the definition of set that you will learn in class 11th. Just leave it here. Simply आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होता है, का किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। The second number system is whole number. Now, whole numbers क्या होते हैं? Only one new number is included. एक ही नया नंबर आया वजूद में है, that is zero. And बाकी सब वही numbers है, like one, two, three, four, so on. So the numbers which starts from zero are called whole numbers. And there's a one important question that I would like to share with you. Which one is the last natural number? Or which one is the last whole number? सबसे last natural number कौन सा है? सबसे last whole number कौन सा है? So I think that you will give me answer in comments. But be the be careful regarding this. I know there is a what I can say, or what I can say, you will give the answer like infinite. Infinite is not a correct and correct answer. You should think about this. Okay. And second point regarding the whole numbers, that these whole numbers are represented are represented by bold W. You should remember this. These whole numbers are represented by bold W. And next point, these numbers are also called these numbers are also called non-negative integers. So non-negative integers. So in set form, we can write down this as like this. Okay, this is W is equal to 0, 1, 2, 3, so on. You should remember this. So whole, only one number is added, that is 0. That the name of the system is changed. We call this as the whole numbers. अब इसके बाद आपको क्या सीखना है? आपको कम यहाँ पे फिर लास्ट में कंपेयर अप करेंगे, फिलहाल हम नहीं। एंड नेक्स्ट इज इंटीजर्स। व्हाट इज मीन टू बाय इंटीजर्स? इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? वी कैन सिंपली से, अभी तक हमें पता था जीरो है नंबर सिस्टम, वन है, टू है, थ्री है, सो ऑन, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स। बट अब क्या हुआ? हर एक पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव नंबर आया। आई मीन टू से वन, -1 आया, फिर -2 आया, -3 आया, -4 आया, सो ऑन। सो अब बहुत सारे नए नंबर्स आए हैं। देन we included all these numbers in the number system. The name of the system gets changed. So we call this number system as the integers. So we can define it as, how we can define the set of integers, or we can define it as collection of positive integers, negative integers, including 0. Or we can define it as collection of non-negative integers. Listen, non-negative integers and negative integers. Collection of non-negative integers and negative integers.
Non-negative integers first, I will write down here. Non-negative integers means 0, 1, 2, 3, 4, 5, so on. And negative integers means -1, -2, -3, so on. So as you have observed, this is the definition of integer. So you can define it in both ways, whether you can say collection of positive integers, negative integers, including 0, or in other words, you can define it as collection of non-negative integers and negative integers. Both the definitions are correct. Now, second point that you should remember, that integers are represented. These integers are represented by z, or you can say simply z. Okay, we are representing these integers by z. So in nutshell, in set form, we can write down this as set of integers is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4, so I hope so. This is clear to all of you. And if you have any doubt, you can ask me. Okay, any kind of doubt regarding this, what it mean, natural numbers, whole numbers, and then integers. You can, okay, you can ask the doubts in the comment section. Now we will talk about in rational numbers. What is mean to by rational numbers? So अभी तक क्या क्वेश्चन था? चलो, बच्चों को काउंट करना, किसी चीज को काउंट करना आया 1 2 3 4 लाइक दिस। अब फिर क्या आया? जीरो। देयर वॉज अ ह्यूज डिस्कशन अबाउट द जीरो। अगर हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, कोई इसका वैल्यू ही नहीं है। हाँ, देयर वॉज अ क्वेश्चन, अगर हम लेफ्ट साइड राइट साइड में रखेंगे, देन इट रिप्रेजेंट्स अ लॉट। ओके, similarly, then there are negative integers like that. There was a question like this: if this is an equation, if this is an equation, let's assume that this, what will be the solution of this equation? That was higher concept. You will learn about this. You have already learned in class 9 what's mean to by solution. So we can find out this, the solution of this equation, like this: 3x is equal to, we have to transpose this on the other side, it will become -3, and we have to transpose this on the other side, it will divide. Okay, you will learn all these concepts in, I think that in third chapter, transposition. And when plus is transposed to another side, it will become minus. When multiplication is transposed to other side, it will become divide, like this. And 3 and 3 will go cancel out, it will become -1. So here are the new numbers like this: -1। अभी तक हमें इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। -1 क्या होता है, -2 क्या होता है। और सिंपली इन कॉमन सेंस नंबर ऑफ सिचुएशंस अराइजेस लाइक दैट। मैं आपको एक चीज बोलूं, इफ वी कैन से aeroplane is above the earth, so this, the distance from the earth to aeroplane is represented by the positive integer. And the second example is submarine is below the sea, so how can I represent this distance from the earth, from the earth's surface? So this is the question. So one thing is above the earth, and the second thing is below the earth. If this distance is represented by positive integer, then how can I represent this distance? So there are the number of situations जहां पे हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। समझ आ रही है बात? सो अब हम रैशनल नंबर्स की बात करेंगे। सिमिलरली सिचुएशन क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल, वी हैव वन ब्रेड। इस ब्रेड को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन अब क्वेश्चन क्या हुआ, एराइज ये क्वेश्चन हुआ, इस हाफ पार्ट को किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे? सो नंबर ऑफ सिचुएशंस हैं अभी तक, 1 2 3। 1 मीन्स होल, 2 मीन्स दो, कंप्लीट टू ऑब्जेक्ट्स, 3 मीन्स कंप्लीट 3 ऑब्जेक्ट्स। अब याद है इसको किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे? तो इन ही सिचुएशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनल नंबर्स की जरूरत पड़ती है। सो व्हाट इज मीन टू बाय रैशनल नंबर? रैशनल नंबर की फर्स्ट डेफिनेशन that you have learnt in class 8th, the numbers which can be written in the form of p by q. P and q are integers,
and q is not equal to 0. Like this definition आपने I think that class 8 से पढ़ा है, 7 से ही, p and q are integers such that uh, p and p divided by q, p and q are integers and q is not equal to 0. You have already learned this definition. Let's assume that if we take 1 by 2, 1 by 2 is a rational number. If we take 3 by 4, 3 by 4 is a rational number. If we take minus 1 by 5 is a rational number. If we take 0, 0 is also a rational number. Remember, 0 rational number होता है. In fact, every integer is a rational number. Every natural number is a रैशनल नंबर. लेट्स एज्यूम डेट अगर जीरो है, हाउ सर ये तो पी बाई क्यू फॉर्म में है ही नहीं, लेकिन जीरो को हम डिवाइड वन के साथ कर सकते हैं. लेकिन हमने क्या डेफिनेशन में है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्यू वन के बराबर है ना. न्यूमिरेटर को होने दो जीरो के. आई नो, आई होप सो यू नो, इफ दिस इज ए डिवाइड बाई बी, दिस इज कॉल्ड न्यूमिरेटर एंड दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. ओके, and we can read this as a divided by b. So similarly we can say minus 1 is also integer. Why? We can divide it, minus 1 is a rational number. Why this is a rational number? Because we can divide this number by 1. So in general you should remember every integer is a rational number, but this is not a rational number. Please remember, root 3 divided by 7, this is not a rational number. Why this is not a rational number? The definition is, it is in the form of p by q. There is no doubt. It is in the form of p by q. Q is not equal to 0. Also satisfied. But one more condition is this. This must be integer and this must be integer. And numerator must be integer and denominator must be integer. डिनोमिनेटर तो इंटीजर है ही, 7 इज इंटीजर, लेकिन रूट 3 इंटीजर नहीं है. यू विल लर्न दिस, व्हाट इज रूट 3, व्हाट इज रूट 2, हमें आगे जाके डिस्कस करना है. आई मीन टू से दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर एंड नथिंग एल्स. ओके, and second thing, these rational numbers are denoted by, or you can say represented. These rational numbers are represented by q. You should remember that. Okay, these rational numbers are represented by q. We can write down these rational numbers in set builder form as, you should remember, in set builder form we can write down this as q is equal to p divided by q, such that p and q are integers and q is not equal to 0. So in nutshell we can write down the definition of rational numbers in this form. Now next definition of rational numbers. I hope so हर एक डाउट आपको क्लियर है. And I think that there is one more question that everyone asked regarding this. If this is 0 then what happens? If q is 0, q के ऊपर क्यों कंडीशन है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? It's common sense. It means that you have 3 chocolates and आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. क्या कोई माने हैं? डिस्ट्रीब्यूट, इट इज कंपलसरी. डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है. डिवाइड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना ही बांटना है. क्या इसमें कोई सेंस है? और सेकंड रीजन इसका ये है कि थ्री को 3 इज इक्वल टू 0 इंटू 0 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वहां पे आंसर 3 आएगा. इज इट पॉसिबल? ये कभी पॉसिबल है? इट इज नेवर पॉसिबल. क्योंकि आपको एक रिजल्ट पता है, अगर हम 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वहां पे 0 ही आता है. दैट्स वाई कि दिस दिस जो जब भी डिनोमिनेटर 0 होता है हम बोलते हैं ये मीनिंगलेस है. ये क्या है? मीनिंगलेस. इसमें कोई मीनिंग माने ही नहीं है. एंड सच नंबर्स आर रिप्रेजेंट, सच थिंग्स आर रिप्रेजेंट बाय द नोटेशन इनफिनाइट. ओके, क्लियर? नाउ सेकंड डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, उसके लिए आपको कंपलसरी आपको पता होना चाहिए जो अपने क्लास 9th में पढ़ा है. व्हाट इज मीन टू बाय टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. एंड सेकंड इज व्हाट इज मीन टू बाय नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपको पता होना चाहिए. एंड थर्ड थिंग, यू शुड नो व्हाट इज मीन बाय
रिकरिंग, और यू कैन से नॉन रिकरिंग। आपको ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, तभी तो सेकंड डेफिनेशन और थर्ड डेफिनेशन हम बना सकते हैं रैशनल नंबर्स। चलो बाय द वे, पहले हम इन्हीं टर्म्स को वापस रिपीट करेंगे। ये व्हाट इज मीन्ड बाय टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अ, एक डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। A decimal expansion is said to be terminating. एक decimal expansion को a decimal expansion is said to be terminating. एक decimal expansion को हम terminating कहते हैं। A decimal expansion is said to be terminating if the number of digits if the number of digits if the number of digits after point if the number of digits after point are finite or finite। लेट्स एज्यूम डेट फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा कि 3.741। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, फाइनाइट मीन्स इनको हम काउंट कर सकते हैं। सो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, अगर 3 डिजिट्स है it means that this the we can say this number has a finite decimal expansion, yeah, terminating decimal expansion we can say. So in case of I will take one more example, 1/5। सो इट मीन यू एज यू नो इफ अगर हमें इसको डिवाइड करना है, ये तो डिविडेंड बनता है, ये डिवाइजर बनता है। आई होप सो यू नो इट। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 1 को हमें डिवाइड करना है 5 से। ओके 5 से डायरेक्टली नहीं होता, तो पहले हमें 0 करना है। क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इसके अंदर नंबर है वो स्मॉलर है, किससे? डिवाइजर से। जब नहीं होता है तो यहाँ पे 5 0 और 0, तो फिर माइनस करना होता है। आई नो आपको डिवीजन आता है, यू आर आप क्लास 10th में हो, आपको पता होगा डिवाइड कैसे करना होगा। 1 - 0 = 1। तो देन यहाँ पे हमें एक पॉइंट लेना है। दिस इज द रूल ऑफ डिवीजन। यहाँ पे हमें एक पॉइंट लेना है, तो यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 5 2 और 10। सो रिमाइंडर इज 0। सो इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है? 1/5 को हम लिख सकते हैं 0.2 के बराबर। सो इट मीन्स दैट जो इस रैशनल नंबर को फाइन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो इट मीन्स दैट अगर किसी भी नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उस नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। A number having decimal expansion is terminating is called a rational number. Second definition. So we can say a number having terminating terminating a number having terminating decimal expansion decimal expansion a number having terminating decimal expansion is called a rational. Second definition of rational. And third definition of rational number, अगर किसी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मैं एक एग्जांपल, पहले एक एग्जांपल मैं दूंगा ताकि आपको समझ आएगा। लेट्स एज्यूम दैट हम 1/3 लेंगे। 1/3 को हमें कॉमनली दिस बिकम्स डिविडेंड एंड दिस बिकम्स डिवाइजर। हाँ, I think you know the parts of the division। okay, this is called a dividend, this is called a divisor। okay, now यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? 3 0 और 0। ओके, फिर यहाँ पे 1 आएगा। आपको अभी मैंने समझाया क्योंकि ये जो नंबर है ये इससे छोटा है, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, पहले 0 से करना होता है। यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। सो फिर ऑब्वियसली 3 3 आर 9। सो 10 - 9 इज 1। तो वंस अगेन एक 0 हम खुद ही ले सकते हैं। रिमेंबर, अगर हमें सेकंड 0 की जरूरत पड़ती है ना, तो यहाँ पे भी लेना होता है, यहाँ पे भी लेना होता है। सो एज यू नो, फिर से 3 3 आर 9, 3 3 आर 9। क्या आपको कभी लगता है ये खत्म होगा?
ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस। लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिए जो क्वोशंट पे, क्या कोई डिजिट बार बार आता है, कोई डिजिट रिपीट होता है? आप, आई थिंक दैट देर इज वन डिजिट। आपको भी समझ आ रहा होगा कि एक डिजिट वहां पे है जो बार बार रिपीट होता है। आई मीन टू से 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.3 बार। बार मीन्स, बार का मतलब क्या होता है, जो ये पर्टिकुलर नंबर है 3 के ऊपर जो मैंने रखा, ये बार बार रिपीट होता है। ये फिर से 3 then it means that this decimal expansion is non-terminating. So non-terminating decimal expansion can be defined as if the number of digits after the point are infinite, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion. I think that this is clear to you. Now I will make one more definition of rational numbers. That is, so a number having decimal expansion is a non-terminating, non-terminating, but repeating, but repeating, उस नंबर को भी हम रैशनल नंबर कहते हैं, is called a rational number, is called a rational नंबर, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अभी मैंने एग्जांपल, और एक एग्जांपल में आपको दूंगा। लेट्स एज्यूम दैट 1/7 या 3/11। यू कैन चेक इन नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है। एक रिजल्ट है, आई थिंक दैट दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मैं आपको समझाऊंगा ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे जो बात हमने की, कि विदाउट कैलकुलेटिंग, विदाउट डिवाइडिंग, डिवाइड करने के भी बिना, हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी हम कह सकते हैं कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। व्हाट इज दिस रिजल्ट? मे बी काम का, आपको काम में आएगा ये रिजल्ट। व्हाट इज दिस रिजल्ट? दिस रिजल्ट इज, अगर हम लेंगे 3 रेज़ टू पावर 20, सॉरी 3/25, डिवाइड कहने के बिना, डिवाइड करने के बिना, डिवाइड करने के बिना हम कह सकते हैं इस नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। वो हम कैसे कर सकते हैं? आपको सिंपली चेक करना है पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज 3 एंड डिनोमिनेटर इज 25। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो भी मैं आगे सिखाऊंगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले फर्स्ट कंडीशन, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनका हाईएस्ट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1। एंड द सेकंड डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट है जो आपको चेक करना है, आपको डिनोमिनेटर लेना है। डिनोमिनेटर को क्या करना है? फैक्टराइज। ये मैं आगे सिखाऊंगा, क्योंकि रिजल्ट पहले ही आया, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात आई। क्योंकि आप ऑलरेडी सीखा होगा क्लास 9th में, हाउ कैन वी फैक्टराइज अ नंबर। इनफैक्ट क्लास 7 से ही ये कंसेप्ट है। सो 2 के टेबल में नहीं आएगा, एज यू नो वाई, बिकॉज उसके लिए आपको लास्ट डिजिट चेक करना होता है। लास्ट डिजिट जो है ये यहाँ पे ऑड नंबर है। आई थिंक यू नो ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर वो नंबर होता है विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर वो नंबर होता है विच इज डिविजिबल बाई 2। सो ये जो 5 है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, इट इज एन ऑड नंबर। सो इट मीन्स दैट ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। जितना भी बड़ा नंबर होगा, आपको सिर्फ लास्ट नंबर चेक करना है। अगर इवन नंबर होगा तो 2 के टेबल में आएगा, अगर ऑड नंबर होगा तो 2 के टेबल में नहीं आएगा। सो इस खाली एक डिजिट। सो अब 3 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा? 5, सम ऑफ डिजिट्स ले लो, 5 + 2 = 7। 7 3 के टेबल में नहीं आता। इट मीन्स दैट ये नंबर भी 3 के, ये नंबर डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। और अब 4 से हमें चेक ही नहीं करना है, आगे जाके आपको पता चलेगा 4 से हमें क्यों नहीं चेक करना है। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, मैं आपको हर एक चीज बोलूँ आगे जाके। एंड अब हम 5 से चेक करेंगे, ऑब्वियसली 5 से चेक, क्योंकि 5 लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 5 है तो 5 के टेबल में आएगा। 5 5 are 25, 5 1 are 5। इट मीन्स दैट 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। सो अगर डिनोमिनेटर होगा, याद रखो, अगर डिनोमिनेटर होगा या 5, याद रखो, या 5
या 5 का पावर, 5 के ऊपर कुछ भी पावर, कोई भी नंबर, आई मीन कोई भी नेचुरल नंबर, हाँ कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, लाइक दैट 5 रेज टू पावर 10, 5 रेज टू पावर 12, 5 रेज टू पावर 1000, वट एवर इट इज। सेकेंड, या टू का पावर, टू के कुछ भी, यानी कि इन जनरल वी कैन से एन, एन क्या है, एन इज ए नेचुरल नंबर, टू या टू का पावर, या इनका प्रोडक्ट, याद रखो, या इनका प्रोडक्ट, किस किस का प्रोडक्ट, 5 and 2 का, रिमेंबर 5 and 2 का अगर प्रोडक्ट होगा, लेट्स एज्यूम दैट ये यहाँ पे 5 रेज टू पावर 12 है, 3 रेज टू पावर 15, 2 रेज टू पावर 15 है, तो किसी ने पूछा क्या ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, आपको डायरेक्टली आंसर बोलना है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज टर्मिनेटिंग। याद रखो, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, या 5 का पावर या 2 का पावर, या इनका प्रोडक्ट, फिर उनके ऊपर पावर कुछ भी होने दो, तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आई थिंक दैट यू विल रिमेंबर दिस रिजल्ट, एंड देयर आर सम पॉइंट्स जो मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की या फैक्टराइजेशन की बात की, यू विल लर्न दीज टर्म्स अहेड, ओके, आगे जाके हम इन टर्म्स के बारे में डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट नंबर सिस्टम, अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, बचपन की कहानी जो आपको पता है, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर, लेकिन अब क्लास 10th में दिस डेफिनेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। I fully to tell you that this definition is not acceptable, क्योंकि और इन क्लास 10 आपको पता होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन क्या है। सो ए नंबर इज सेड टू बी irrational number if its decimal expansion is non-terminating, non-terminating, remember, non-terminating, and second condition is compulsory, non-terminating and non-repeating, yeah, non-recurring, you can say. So two terms, one is non-terminating and the second one is non-repeating. So let's assume that, अब एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल कोई दो, अब √2 ले लो, √2 की डेसिमल एक्सपेंशन अब चेक करो, √2 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, you can check its decimal expansion. I think that its decimal expansion is 1.41421356, as you have seen that नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि इसके पॉइंट्स के बाद इन्फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, एंड नॉट रिपीटिंग क्योंकि कोई 4 1 4, सर 4 तो आया नहीं मैंने, अगर 4 1 आया 4 1 कंटिन्यूसली आना चाहिए, तो ऐसा नहीं हुआ, सो दैट्स वाई। सिमिलरली अगर हम √3 लेंगे, सिमिलरली अगर हम √5 लेंगे, सिमिलरली अगर हम √7 लेंगे, so, अगर हम पाई लेंगे, हाँ, या ई लेंगे, इन नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ई क्या आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ो ई की बात, ई क्या है, इन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब इरेशनल नंबर्स को किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर्स को हम r - q से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर्स को हम r - q से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस रियल नंबर्स में से हमें रैशनल नंबर्स को बाहर निकालना है, तो वहां पे क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल, आप यू हैव 2 बैग्स नाउ, अब समझो जो मुझे कंसेप्ट असल में समझाना है, जो आपके सिलेबस में है, जो टॉपिक की हेडिंग है, ये एक आपके पास बैग है, इसमें रैशनल नंबर से, एज यू नो रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंट बाय क्यू, यानी कि इसमें 1 है, इसमें -1 है, इसमें 1/2 है, इसमें 5/2 है, ठीक है, इसमें ये नंबर्स है। एंड द सेकंड नंबर सिस्टम आपके पास ये है, ये आपके पास सेकंड बैग है, इसमें इरेशनल नंबर्स है, मींस r - q, ठीक है, मतलब इसमें √2 है, इसमें √3 है, इसमें √5 है, इनफैक्ट रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, पहले प्राइम नंबर में डिस्कस करूं, बाद में हम ये बातें भी डिस्कस करें, √7 या पाई। नाउ यू कैन ऑब्जर्व बाय योर सेल्फ, अब खुद ही चेक करो, क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जो इसमें भी है, क्या, या इसमें कोई ऐसा नंबर है जो इसमें भी है, चेक करो,
ये टोटली अलग अलग नंबर्स है। अभी तक जो भी हमने ऑब्जर्व किया, नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन होल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन इंटीजर्स, इंटीजर्स आर इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे जो सेकंड कंसेप्ट आया इरेशनल नंबर, इनके बीच में एक नंबर भी कॉमन नहीं है, इनके बीच में एक नंबर भी कॉमन नहीं है। सो अब क्या हुआ, इनको हम इन दो नंबर्स को, टोटली डिसजॉइंट है, वी कैन से डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। अगर अलग अलग है, इन दो सेट्स को, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हमने एक ही बैग में डाल दिया। मतलब इस बैग में कौन कौन सा नंबर है, 1 भी है, -1 भी है, √2 भी है, √3 भी है, 1/4 भी है, पाई भी है। हर एक किस्म का नंबर इसमें है अब। सो इस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ rational numbers and irrational numbers. It is the combination of rational numbers and irrational numbers, and this collection of numbers are represented by capital R. I hope so. This is clear to you. And in nutshell, we can write down this R is equal to X such that X is a real number. ये आगे की बात है जो आपको क्लास 11th में पढ़ना है। आगे जगह आपको काउंटेबल, इनकाउंटेबल, डेंसनेस, यू विल लर्न ऑल दिस इज द हायर कंसेप्ट। अब क्लास 10th में सिंपली यहां तक समझो व्हाट्स मीन टू बाय रियल नंबर। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ rational numbers and then irrational numbers. So this number system is called the whole number. अब कुछ क्वेश्चंस हैं दैट इज कॉमन सेंस, मतलब क्या हम बोल सकते हैं एवरी हर एक एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? क्या ऐसा पॉसिबल है? ज्यादा दिमाग लड़ाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखो। पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 सो ऑन। फिर आपको पता होना चाहिए होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4। यानी जिसकी पहली बात हो गई, पहली किसकी बात होगी, नेचुरल नंबर्स की। अब चेक करो, जो यहाँ पे नंबर है क्या वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे नंबर है क्या वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे न, इट मीन्स दैट हाँ, इट्स ट्रू, इट इज ट्रू, मसला खत्म। एंड सिमिलरली अगर क्वेश्चन आया, क्या हम बोल सकते हैं एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर? को पता पता है, नहीं पता है, गेस नहीं करना है, होल नंबर्स की डेफिनेशन यूज करो। 1 2 3, 0 1 2 3 सो ऑन। इंटीजर्स की डेफिनेशन यूज करो, 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 लाइक दिस। ओके, अब चेक करो, यहाँ पे 0 क्या यहाँ पे 0 है, यस। यहाँ पे 1 है क्या यहाँ पे 1 है, यस। यहाँ पे 2 है क्या यहाँ पे 2 है, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, क्या हम बोल सकते हैं एवरी रियल नंबर इज अ होल नंबर? क्या ऐसा पॉसिबल है? चेक करो, रियल नंबर्स लिखो, कुछ नंबर्स लिखो, √3 1 -1 √5, हाँ, पाई 1/2, ये है ना सारे रियल नंबर्स। अब होल नंबर्स लिखो, 0 1 2 3 4। अब चेक करो, इसमें 1 है, इसमें 1 है, कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें बेचारा √3 है, क्या इसमें है? नहीं है, इट्स फॉल्स। आई थिंक दैट आपको आप कंपेयर करना आएगा खुद। अगर आपको क्वेश्चन आएगा क्या एवरी रैशनल नंबर होल नंबर है, सो कंफ्यूजन मत, पहले रैशनल नंबर्स लिखो, कुछ रैशनल, फिर होल नंबर, फिर कंपेयर क्या है जो इसमें नंबर से, क्या वो हर एक नंबर उसमें है? अगर नहीं है तो फॉल्स, अगर है तो ट्रू। इस तरीके से आप कंक्लूजन खुद कर सकते हो। आई होप सो यू हैव लर्न a lot of things from this lecture। आपने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि ये बेसिक ही था, अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया। ये सिंपली इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग द होल नंबर्स। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। उसमें हमें कंपोजिट नंबर होना चाहिए, पता होना चाहिए, प्राइम नंबर पता होना चाहिए, फिर ही वो स्टेटमेंट समझ आएगा। एंड फिर हम सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं,
ओके, बाय फैक्टराइजेशन, ओके वो भी सीखेंगे। फिर हम इसी चैप्टर में सीखेंगे हाउ कैन वी प्रूव। आपको अब पता चला कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी प्रूव रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें आगे जाके सीखना है। थैंक यू।